بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں گورنر پنجاب ملیک الرحمان کی سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد کی گھر آمد۔ گورنر پنجاب کی سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد سے ملاقات، اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سے پارٹی کی اور میاں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، طلال چودھری صاحب اس پر روشنی ڈال رہے تھے، میاں منان صاحب نے، شیخ اعجاز صاحب نے مختلف باتیں کی، تو یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ میاں نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے، آگے لے جانے کے لیے ہماری پارٹی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ مشکل حالات میں اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو داؤ پہ لگا کے اور سیاست نہیں ریاست بچانے کا بتا کر ذمہ داری جب لی ہے تو اسی لیے لی ہے کہ ہمارے ملک کو، جس کے ساتھ ہماری تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کو ہماری ضرورت تھی، اور ان مشکل ترین حالات میں عمران خان اور اس کی پارٹی راہ فرار پہ ہے۔ وہ شاید نہیں چاہتے کہ جو بھی اس وقت مشکل حالات آ رہے ہیں جو ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، اس میں ان مشکل حالات میں وہ حکومت کرتے اگر نظر آئیں گے تو ان کو بلیم ملے گا۔ جس جگہ بھی جائیں دنیا میں یا پاکستان میں، تمام اہل فکر اور اہل دانش وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اتنے مشکل حالات میں ڈال دیا گیا ہے کہ سب لوگوں کو چاہیے کہ مل کے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن 2013 سے جس چارٹر آف اکانومی کا ہم کہہ رہے ہیں اس کو اگر نہیں مانتا تو عمران خان نہیں مانتا۔ آج مل کے اگر چلنے کو کوئی تیار نہیں ہے تو عمران خان نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب بھی پارلیمانی آپ جمہوریت کو اٹھا کر دیکھیں تو حکومت ہمیشہ اپوزیشن کو زیادہ موقع دیتی ہے پارلیمان میں۔ یہ واحد حکومت تھی عمران خان کی جس میں اپوزیشن کو دبایا جاتا تھا، اس سے بات نہیں کی جاتی تھی، اور کارکردگی کی بجائے غلط زبان اور غلط باتیں جو ہیں وہ کی جاتی تھیں۔ ابھی یہاں شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں عاجزی اور حلم اور اچھے طریقوں سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے اندر یہ اچھی کام کے جو طریقہ کار ہے یہ ہمیں میاں نواز شریف سے ہی آتا ہے، جو کہ عین مسنون طریقہ ہے ایک بہتری والا کام، اور اچھے اخلاق اور حسن اخلاق والا کام جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا۔ میں ابھی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے آ رہا ہوں، وہاں پہ بھئی جہاں سب رکے ہوئے ہیں نا یہیں پہ رک جائیں، ایک منٹ سیکورٹی، جہاں سب رکے ہوئے یہیں پہ رک جائیں، ہم بات کرنے پھر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یونیورسٹی سے جب میں وہاں پہ بات کر رہا تھا تو مجھے اسٹوڈنٹس کو بتانا پڑ رہا تھا کہ آج سوشل میڈیا پہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے، بد تہذیبی کا کلچر ہے، جو ابھی کچھ ہی عرصے میں پروان چڑھا ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں تھانہ مدینہ ٹاؤن پولیس نے بھارتی خاتون کو حراست میں لے لیا۔ 77 سالہ خاتون شبنم کا تعلق بھارت کے علاقے جے پور سے ہے۔ شبنم 2008 میں واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان آئی تھی۔ بھارتی خاتون کا ویزا جون 2010 میں ختم ہو چکا ہے۔ خاتون مدینہ ٹاؤن میں عرصہ دراز سے ویزا کے بغیر قیام پذیر تھیں۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ مدینہ ٹاؤن پولیس کی جانب سے بھارتی خاتون کو اپنی حراست میں لیا گیا ہے۔ شبنم نامی یہ خاتون 2008 میں واگا بارڈر کے ذریعے لاہور آئی تھی، وہاں سے 2010 میں اس کا ویزا ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ قبل یہ فیصلہ آباد میں لاوارث بھی رہی تھی کہ مدینہ ٹاؤن کے کسی وکیل نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس کو ایک خالی گھر دے دیا، جس پر ایجنسی پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس نے آج جا کر اس کو حراست میں لے لیا۔ خاتون اپنا ویزا ایکسپائر ہونے کے حوالے سے کوئی جواب نہ دے سکی، جس پر حساس اداروں نے اس سے پوچھ گچھ کی، جس کے بعد اس کو مزید کارروائی کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کام کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس کے ملک بھارت میں رابطہ کر کے خاتون کو جلد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جی طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
फैसल आबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा, नई कीमत 1,85,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,565 रुपए महंगा 1,58,600 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं फैसल आबाद की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा, नई कीमत 1,85,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,565 रुपए महंगा 1,58,600 रुपए का हो गया। जंग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को स्पेशल अलाउंस की फराहमी के हवाले से तब्दीलियां, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस समेत दीगर स्पेशल अलाउंस को खत्म कर दिया गया। प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ऑफिशियल्स को अब एक माहाना अलाउंस की फराहमी होगी। डीजी और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल को बुनियादी तनख्वाह का 125% अलाउंस की मद में अदा होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को बुनियादी तनख्वाहों का 100% अलाउंस की मद में अदा होगी। नॉन प्रोसिक्यूटर ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को बुनियादी तनख्वाह का 75% अलाउंस की मद में अदा किया जाएगा। महकमा फाइनेंस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में सैनिटरी वर्कर्स की एहतजाज की कॉल रंग ले आई। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गईं। फंड्स मिलने में ताखीर की वजह से बैंक ऑफ पंजाब से कमर्शियल कर्जा हासिल करके तनख्वाहें अदा की गईं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बिलाखिर जो है फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स की काबिशें रंग ले आई हैं। एहतजाज की कॉल की वजह से कंपनी ने उनकी तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया और मुलाजमीन की जो माहाना तनख्वाह थी वो अदा कर दी गई है। 13वीं तनख्वाह के लिए भी जो है वो अकाउंट ऑफिस में चेक भिजवा दिया गया ताकि मुलाजमीन को जो 13वीं तनख्वाह दी जाती थी, क्योंकि ये ड्यूटियाँ करते थे दिन पर और स्पेशल डेज़ पर छुट्टी नहीं करते थे, उसके बदले में उन्हें एजाज़ियत दिया जाता था, उसकी मंजूरी दे दी गई और अब भिजवा दिया गया, जो इससे पहले 15 दिसंबर को मिलता होता था ताकि वो 25 दिसंबर क्रिसमस और उसके अलावा नए साल की तैयारियां कर सके। इस बार फ़ंड्स मिलने में तख़ीर की वजह से ये मामला भी तख़ीर का बायस बन गया, क्योंकि फ़ंड्स अभी तक नहीं मिले और मजबूरन पंजाब हुकूमत बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो है वो लोन हासिल किया गया, कमर्शियल लोन, ताकि मुलाजमिन की तनख्वाहें दी जा सकें। तो अभी मुलाजमिन की तनख्वाहें दी जा चुकी हैं और उसके अलावा जो 13वीं तनख्वाह उसके लिए भी फ़ंड्स जारी किए जा चुके हैं ताकि इन मुलाजमिन को दिए जाए, जिस पर इन मुलाजमिन ने अब एहतजाज की कॉल वापस ले ली है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का पहला बाज़ाब्ता इजलास अलमरकज़ जमात इस्लामी चिन्योट बाजार में मुनक्किद हुआ। इजलास में जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से मुल्क और ताजरों की फलाह के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल जमात इस्लामी मरकज़ चिन्योट बाज़ार में आज ट्रेडर्स विंग का इजलास हुआ है, जिसमें जो नए अहदेदारान हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसकी सदारत जो है वो ज़िलाई अमीर महबूबुल ज़मान भट्ट की जानिब से की गई है। और जो डिवीजनल सदर हैं जमात इस्लामी फैसलाबाद के राना सिकंदर आज़म खान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी राना साहब, बताइएगा आज के इजलास के हवाले। फजील, बहुत शुक्रिया। आज हमारी पहली मीटिंग है ट्रेड विंग की, जिसमें हमने आज ओहदेदारान का जो है अनाउंसमेंट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे लेके चले हैं। 50 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो हमने बनाई है और उसके जितने ओहदेदारान हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन, सीनियर नायब सदर, नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी, इनके आज नामों की अनाउंसमेंट की है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक सही नुमाइंदगी जो है ताजरों की, वो ये आज का ट्रेड विंग वो करेगी। बिल्कुल, ताजरों की नुमाइंदगी जो है वो जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से की जाएगी। डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी उसामा सईद अवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी उसामा भाई, आप कहिएगा क्या कहेंगे ट्रेडर्स विंग। सबसे पहले तो फजील भाई, मैं आपको और सिटी 41 का बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा उन्होंने ताजरों की आवाज़ और फैसलाबाद की जो अवाम है उनके मसाइल को उजागर किया है। ट्रेडर विंग जो है जमात इस्लामी की, ये एक आप कह लें कि फैसलाबाद की जमात इस्लामी के लिए नेक शगुन साबित होगा कि फैसलाबाद से जो ताजर कम्युनिटी है उसका उन्होंने नून लीग का और पीटीआई का बिस्तर गोल करके जमात इस्लामी की तरफ रुख कर लिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी ट्रेड विंग है ये नफाद मुस्तफ़ा के लिए, ताजरों की हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी और इंशाअल्लाह आने वाला दौर फैसलाबाद जमात इस्लामी फैसलाबाद का किला साबित होगा। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आने वाले दौर में जो फैसलाबाद है वो जमात इस्लामी का अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग में जमात इस्लामी के सूबाई अमीर मौलाना जावेद कसूरी की जेर सदारत जामिया मुआरिफ इस्लामिया में इजलास में ज़िलाई अहदेदार और जोनल अहदेदारों की शिरकत। मौलाना जावेद कसूरी ने जमात इस्लामी को मजीद फ़आल करने और आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस।
बिल्कुल जंग में जमात इस्लामी के ज़िले दफ्तर में मौलाना जावेद कसूरी की ज़ेर सदारत जो इजलास का इनकाद किया गया, इसमें तमाम जोन्स के तमाम अहदेदारान जो हैं ज़िले और जोन्स के अहदेदारान हैं उनकी से जो है इनके तमाम तर तबादला ख्याल किया गया है। सर में से मौलाना जावेद कसूरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम तर जोन से मुलाकात भी की गई है, जमात इस्लामी को मज़ीद फ़ाल करने के वाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त जमात इस्लामी जंग की पूरी क़यादत यहाँ मौजूद है। हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं वो मौजूद हैं और हम ये तय कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी इन रवायती पार्टियों के मुकाबले में जिन्होंने मुसलसल कौम को दुखों, परेशानियों और इस्तेसाल के सिवा कुछ नहीं दिया। आज भी जंग शहर को मैंने देखा है तो जगह जगह उबलते हुए गटर हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और जंग का आम शहरी सवाल कर रहा है कि जो यहाँ से क़यादत मुंतखब होती रही उन्होंने जंग को क्या दिया है। तो हम इंशाअल्लाह एक फलाही एजेंडे के साथ मैदान अमल में आ रहे हैं। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में एक मुतबादल क़यादत के तौर पे सामने आएगी। हम तराजू के निशान पे तमाम हलकों में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और मैं इस मौके पे जंग की आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये आपने फैसला करना है कि आपने जागीरदारों, वडेरों और एक रवायती सियासतदानों के चुंगल में रहना है और आने वाली नस्लों को उसी में रखना है या आपने जंग को बदलना है। हम इस बात का अहद करते हैं कि जंग के अवाम अगर जमात इस्लामी पे एतमाद करेंगे तो जमात इस्लामी के लोग जंग को एक खुशहाल जंग बनाएंगे, पुरअमन जंग बनाएंगे और जंग की तामीर व तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा ये अज़म है कि हम करप्शन को रोकेंगे। हमारा अपनी कौम से वादा है कि हम इस मुल्क के अंदर जो प्रोटोकॉल कल्चर ने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया वसाइल को, हम उसका खात्मा करेंगे। हमारी अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हम सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे और हम ख़ास तौर पे पंजाब को जुल्म और इस्तेसाल से पाक करेंगे। गुज़श्ता 10 सालों से ख़ास तौर पे पंजाब सारे का सारा खंडर बना हुआ है। आप कभी मेन रोडों से उतर के नीचे उतरें तो आपको पता चलता है कि पंजाब में तो कोई डेवलपमेंट के काम ही नहीं हुए। अरब हार रुपए का बजट है और वो बजट चंद लोगों की जेबों में जा रहा है और पंजाब के अवाम जुल्म और इस्तेसाल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज की हमारी मीटिंग में हम आने वाले इंतखाबात के लिए एक भरपूर कैंपेन को डिज़ाइन कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में तराजू के निशान के ऊपर पूरे पंजाब में मैदान में होंगे और इंशाअल्लाह कराची तराजू का, आने वाले इंतखाब में पंजाब भी तराजू का, जंग भी तराजू का इंशाअल्लाह। मेहरबानी। खुसूसी तौर पर जो पंजाब और खुसूसी तौर पर जंग में तरक्याती काम ना होने पर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, बिजली के नए मंसूबों के हवाले से अहम पेशरफ्त। फेस्को ने बिजली के नए मंसूबों के लिए कंस्ट्रक्शन पोल खरीद लिए। 2 से ज्यादा नए कंस्ट्रक्शन पोल्स फेस्को डिवीजन दफातर को रिलीज कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली के नए मंसूबों के हवाले से जो है वह अहम पेशरफ्त सामने आई है। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से बिजली के नए मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से कंस्ट्रक्शन पोल्स जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं और 200 से ज़ायद कंस्ट्रक्शन पोल्स जो हैं वो बिजली के नए मंसूबों को मुकम्मल करने के हवाले से फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से रिलीज़ भी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि बिजली के नए मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए कंस्ट्रक्शन पोल्स जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं ताकि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक फेस्को के सिस्टम में वसअत पैदा की जा सके और सार्फिन को कनेक्शन की सहूलत फराहम की जाए। कंस्ट्रक्शन पोल्स पर जो है वो करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च की गई है ताकि बिजली के मंसूबों को मुकम्मल किया जा सके। नई कॉलोनीज़ में बिजली फराहम करने के हवाले से प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया जा सके और इसके साथ साथ अजाफी आबादी को बिजली जो है वो फराहम की जा सके और कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने वाले जो तमाम तर कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर बिजली फराहम की जा सके और इसी हवाले से कंस्ट्रक्शन पोल्स की खरीदारी का अमल जारी है। 200 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पोल्स जो हैं वो फेस्को की जानिब से तमाम तर वो डिवीज़न दफातर जहाँ पर बिजली के नए मंसूबे जारी हैं उनको रिलीज़ कर दिए गए हैं ताकि तमाम तर मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके और मंसूबों को अपने अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिदा परवीन डीएसपी ट्रैफिक चिन्यूर तैनात कर दी गई। ओहदे का चार्ज संभाल लिया, स्टाफ से मुलाकात की। कहती हैं शहर में बेहंगम ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगी। आपको बता रहे हैं जाहिदा परवीन डीएसपी ट्रैफिक चिन्यूर तैनात कर दी गई। ओहदे का चार्ज संभाल लिया, स्टाफ से मुलाकात भी कर ली। कहती हैं शहर में बेहंगम ट्रैफिक की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगी।
दूसरी जानिब जिला चिन्योट की पहली खातून SHO तैनात। सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद को SHO थाना मोहम्मद वाला तैनात कर दिया गया। लारेब शाहिद इंचार्ज एंटी वेमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल सरफराज सर अंजाम दे रही थी। जिला चिन्योट की पहली खातून SHO तैनात। सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद को SHO थाना मोहम्मद वाला तैनात कर दिया गया। लारेब शाहिद इंचार्ज एंटी वेमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल सरफराज सर अंजाम दे रही थी। आपको बता रहे हैं जिला चिन्योट की पहली खातून SHO तैनात। सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद को SHO थाना मोहम्मद वाला तैनात कर दिया गया। लारेब शाहिद इंचार्ज एंटी वेमेन हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल फराइज सर अंजाम दे रही थी। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने लेडी सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा को SHO तैनात कर दिया। जंग की तारीख में रुकैया रजा को पहली बार थाना जंग सिटी में स्टेशन हेड ऑफिसर तैनात किया गया। DPO जंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने लेडी सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा को SHO तैनात कर दिया गया। जंग की तारीख में रुकैया रजा को पहली बार थाना जंग सिटी में स्टेशन हेड ऑफिसर तैनात किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का सर्कल क्लब का दौरा। क्लब में मौजूद जिम, चाइल्ड जिम, स्नो क्लब, स्क्वाश क्लब समेत दीगर एक्टिविटी का जायजा लिया। स्पोर्ट्स टाइम और फैमिली टाइम एक छत तले मैसर होने के बाद सर्कल क्लब एक खूबसूरत जगह है। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख ने आज सर्कल क्लब का दौरा किया है और तफसीली जायजा लिया गया है सर्कल क्लब में मौजूद तमाम तर सहूलियात का जो ताजर बिरादरी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि सर्कल क्लब एक कम्युनिटी क्लब कहलाता है। फैसलाबाद में बहुत से लोग जो कुछ रस करना चाहते हैं, कुछ वक्त अपनी फैमिलीज के साथ बिताना चाहते हैं, यहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज के इस विजिट के हवाले से? जी, आज का ये विजिट इसीलिए आज यहाँ पे रखा गया मियाँ साहब की इनविटेशन के ऊपर कि सर्कल क्लब को देखा जाए और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़ाहिर है फैसलाबाद जैसा शहर जो कि सनती शहर है और इंडस्ट्री जहाँ पे ग्रो कर रही होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा होता है, वहाँ पे कुछ रिक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं उस शहर के लिए, जैसे एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, लोग आएँ आके रिलैक्स करें। तो बड़ी अच्छी यहाँ पे रेस्टोरेंट है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं और इंटीरियर भी बड़ा मुझे पसंद आया। तो आई मस्ट अप्रिशिएट मियाँ साहब की पूरी जो टीम है उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आज बिल्कुल सर्कल क्लब के तमाम तर सहूलियात जो हैं उनके बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग ली गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ शफीक साहब भी, इनसे भी पूछेंगे। मियाँ साहब ये बताइएगा खसूसी तौर पे क्या समझते हैं कि आप इमरान साहब से बात करते हैं, आप ये बताइएगा क्या समझते हैं कम्युनिटी के लिए बनाया गया ये एक बेहतरीन क्लब जो है, ये क्या माशरे में बेहतरी के लिए क्या क्या किरदार अदा कर रहा है इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मियाँ इमरान साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो क्लब है फैसलाबाद की ज़रूरत थी। फैसलाबाद में एक सिर्फ चनाब क्लब भी था जिसमें लोग अपनी फैमिली के साथ जाते थे, तो दूसरे क्लब की यहाँ पे जो मियाँ साहब ने अपॉर्चुनिटी दी है तो इसका आज हमने विज़िट किया डी साहब के साथ। तो इसका इंटीरियर, इसकी जो सारी इक्विपमेंट्स हैं वो बड़े स्नूकर क्लब, स्क्वाश क्लब समेत दीगर एक्टिविटी का जायजा लिया गया। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।